Hello guys, welcome back to Cloud with PK. Today we are going to discuss our another day 3 very important scenario based question. The question is what is 502 or 503 errors and how we can fix these. So let's start. Let's jump to the topic. Production issue debugging. Error deep dive 502 or 503. We will discuss about the ALV, Nginx, app server and DB server. Today's agenda is what is 502 or 503, architecture end to end explain, real scenario, root causes, DB bottleneck, debugging steps or fix. Full architecture. Here is the flow, guys. User will flow is like user will request for any app access or any website access. Then request will go to the ALV, automatic load balancer. From the load balancer, it will go to Nginx server. Nginx servers will send this to the backend app server. App server, whatever like manage app send query to the database server, and we will get the response. Okay, so Nginx and ALV. See whether we can keep Nginx separate server or whether whatever automatic load balancer is configured we can keep the Nginx configuration also on the load balancer. Nginx means like the tasks which are going to cover by the Nginx server, we can schedule the same task to the ALV as well. So the task, what are the tasks? These load balancing, reverse proxy and ये load balance करता है तो हम क्या कर सकते हैं, ALV पे भी load balancing obviously automatic load balance करता है वो, तो उस पे ये reverse proxy का भी सेटअप इसी पे कर सकते हैं. तो लाइक मॉडर्न आर्किटेक्चर Nginx is rarely used actually, so they are using ALV only to set up all these things. Component roles क्या है? ALV ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करता है. Nginx राउटिंग और टाइम आउट देखता है. रिवर्स प्रॉक्सी. ऐप सर्वर ऑब्वियसली गोइंग टू हैंडल बिजनेस लॉजिक and DB server obviously storing the data. What is 502 or 503? 502 bad response from backend. कि जब Nginx सर्वर और लोड बैलेंसर EC2 इंस्टेंस को रिक्वेस्ट भेज रहा है तो उधर से रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा. रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है मतलब बैड रेस्पॉन्स आ रहा है. तो 502 में क्या होता है कि जब आप रिक्वेस्ट करते हो तो आपका फ्रंट एंड जो सर्वर होता है वो बैक एंड सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है डेटा के लिए, और जब डेटा के लिए उधर से रेस्पॉन्स नहीं आए, क्या वो बैकएंड सर्वर अगर डाउन हो तो उस केस में टाइम आउट और 502 एरर्स आता है. ओके, और इन केस ऑफ 503 सर्विस अनअवेलेबल मींस लाइक सपोज ये डेटाबेस सर्वर को रिक्वेस्ट गई और वो ज्यादा लोड की वजह से सर्विस अनअवेलेबल करके शो करता है. प्रोडक्शन सिनेरियो क्या है इसका? During peak traffic, user faces intermittent 502 or 503 errors on refresh. Sometimes works or sometimes doesn't works. तो जब हम किसी वेबसाइट और किसी ऐप को एक्सेस करते हैं तो कभी कभी हमें 502 और 503 एरर आते हैं. तो that may be like server is not available or high load. So in this case, like when we will refresh it, तो कुछ कभी तो ये काम कर जाएगा, कभी ये काम नहीं करता है, डजंट वर्क. और ये तो आप सबने देखा ही होगा जब हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो समटाइम्स these errors are normal actually. we see symptoms में random failure, slow API and heavy latency. Random failures, server is down, backend server, slow API response, like in response server, when server is calling for the API, that's taking much time, and high latency like database server is overloaded. Root cause overview क्या है? Man 3 regions are there for this: timeout mismatch, thread exhaustion and DB bottleneck. तो चलो इनको समझते हैं. एग्जाम्पल अब देखिए, ALV ऑटोमेटिक लोड बैलेंसर का टाइम आउट 60 सेकेंड है, Nginx का 60 है और ऐप का 70 है. तो रिजल्ट क्या होगा कि ये फ्लो ऐसे होगा, राइट? तो यूजर जो कॉल करेगा वो ALV को जाएगा, ठीक है? ALV का 60 सेकेंड है, राइट? Nginx का 30 सेकेंड है.
तो ये तो 60 सेकंड वेट कर जाएगा, लेकिन 30 सेकंड होने की वजह से इधर से कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, तो हमें nginx टाइम आउट एरर आ जाएगा, राइट। ये फिल होगा गाइज, यूजर ALB को रिक्वेस्ट भेजेगा, ALB से nginx को जाएगा, nginx से ऐप सर्वर से DB, और तब रेस्पॉन्स आएगा। अगर इसका टाइम आउट ही कम है रेदर देन दिस ALB, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू गिव अस टाइम आउट एरर। nginx config में proxy did timeout 30 second, which is here is the root cause, right? Backend slow, timeout error 502. थ्रीड एक्जॉशन देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए लाइक थ्रीड्स 100 है, रिक्वेस्ट 500 आ रहे हैं, ठीक है, तो रिजल्ट ऑब्वियसली क्यू बढ़ जाएगा और समटाइम्स ये 503 का एरर, फेल एरर दिखा देगा। डीबी बोटलनेक में क्या है, डीबी क्वेरी स्लो है, ऐप वेटिंग, थ्रीड ब्लॉक्स, रिजल्ट्स 502 और 503 एरर। डीबी प्रॉब्लम क्या हो सकती है, लाइक नो इंडेक्स, स्लो को क्वेरीज, लॉकिंग, हाई कनेक्शंस, तो कनेक्शंस बहुत ज़्यादा जा रहे हो, इंडेक्स नहीं हो या कम हो, क्वेरी स्लो हो। मल्टीपल डीबी सेटअप्स में हम इसके लिए फिक्स क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डीबी सेटअप कर सकते हैं, लाइक 1 या 2 डीबी हम प्राइमरी राइटेबल रख सकते हैं, और 4-6 डीबी जो हमें नीड है उस वो डीबी रेप्लिका, रीड ओनली रेप्लिका रख सकते हैं। तो रीड ओनली रेप्लिका क्या होती है, मतलब कि इस पे हम डेटा को बस रीड ही कर पाएंगे। अगर हमें कोई, जैसे कि सपोज कोई ऐप है जिस पे हम शॉपिंग कर रहे हैं, तो जब हमें ब्राउज करना है तो रीड ओनली रेप्लिका यूज होगी, और जब हमें ऑर्डर डालना है या ऑर्डर करना है तो वो राइट डीबी रेप्लिका हमें स्टोर होगा, क्योंकि राइट में राइट हो जाएगा, रीड में हम देख पाएंगे, राइट। एंड टू एंड फेलियर फ्लो, यूजर रिक्वेस्ट भेजी, ऐप ने डीबी को हिट किया, डीबी स्लो हो गया, ऐप स्टक हो गया और nginx टाइम आउट आ गया, या थ्रीड्स फुल का एरर आ गया, राइट। दिस इज द फ्लो चार्ट। लॉग एनालिसिस कैसे करेंगे, nginx के लिए ऑब्वियसली अपस्ट्रीम टाइम आउट होना चाहिए, विच वाज शोइंग 60 सेकंड वाज नॉट वर्दी एक्चुअली, दैट इज गोइंग टू फेल। ऐप के लिए थ्रीड पूल एग्जॉस्टेड, ये चेक करेंगे, और डीबी के लिए स्लो क्वेरी लॉग्स देखेंगे। और इसके लिए, इसे अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग टूल यूज कर सकते हैं। AWS RDS, ये AWS RDS क्या है, Amazon डेटाबेस सर्विसेज। AWS RDS को Amazon अपने एंड से मैनेज करता है, वी जस्ट no need to install or manage this, they are going to manage this, we are going to use this, that's it। CPU latency और connections वगैरह को चेक करते रहना चाहिए। डिबगिंग स्टेप्स में क्या है, ALB लॉग्स देखो, मॉनिटर करते रहो, चेक nginx लॉग्स, चेक ऐप थ्रीड्स चेक करते रहो, और डीबी लेटेंसी चेक करो, आइडेंटिफाई स्लो क्वेरी, अगर स्लो को ये क्वेरी है तो उसे आइडेंटिफाई करेंगे। टाइम आउट अलाइनमेंट, दिस इज शुड बी इन सिंक, लाइक ALB से nginx और nginx से ऐप को जा रहा है, तो ऐप का सबसे ज्यादा होना चाहिए, जो कि 70, ठीक है, nginx का 65 दिया है, तो ALB का 60। दिस शुड बी इन दिस फ्लो। डीबी ऑप्टिमाइजेशन क्या कर सकते हैं हम, इंडेक्स ऐड कर सकते हैं डीबी में, लाइक इंडेक्स मींस वी कैन से एक टेबल है, उसमें अलग अलग स्लॉट्स हैं, तो अगर हमें एक स्लॉट सर्च करना है तो डायरेक्टली डेटा उस स्लॉट से आ जाएगा। अगर इंडेक्स वगैरह नहीं है या कम है तो वो फिर उसे स्कैन करेगा, तो ऑब्वियसली सर्वर पे लोड जाएगा। ऑप्टिमाइज क्वेरीज, आई मीन टू से रीडिफाइन क्वेरीज, क्वेरीज को ज़्यादा ऑप्टिमाइज, अच्छे से ऑप्टिमाइज करेंगे तो ऑब्वियसली दिस विल नॉट गिव द हाई लोड। रिड्यूस जॉइंस, यूज कैसिंग, स्केलिंग कैसे कर सकते हैं, ऐप स्केलिंग करी जा सकती है ऑटो ऐप स्केलिंग से, और डीबी स्केलिंग की जा सकती है रेप्लिका से, रीड ओनली रेप्लिका बना के। कनेक्शन पूल, कंट्रोल डीबी कनेक्शंस, अवॉइड ओवरलोड। तो कनेक्शन पूल क्या होता है, ये कनेक्शन पूल में ये डीबी कनेक्शंस को कंट्रोल करता है। एडवांस फिक्स में रेडिस कैसे क्या होता है,
वही सेंट्रल मेमोरी कैसे होता है, जिसमें कि एक बार सपोज यूजर ने क्वेरी करी तो वो क्वेरी कैशे में भी स्टोर हो जाती है, तो दोबारा अगर यूजर क्वेरी करेगा तो वो कैशे से ही उठा के उसे दे देगा, ना कि वो दोबारा डेटाबेस सर्वर पे हेड करेगा। एसक्यूएस ये मैसेज क्यू होती है जिसमें कि टास्क को स्टोर किया जाता है जो कि बैकएंड में एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसका आउटपुट मिल जाएगी। सपोज कि किसी यूजर ने कोई क्वेरी करी कि ईमेल के लिए तो वो क्या है कि उसे क्यू में डाल देगा और क्यू से रेस्पॉन्स आ जाएगा तो इमीडिएट उसे रेस्पॉन्स देके दे देगा। मतलब बैकएंड में टास्क किसी और दूसरे से या किसी अदर सर्वर पे एग्जीक्यूट करा लेना, राइट? लाइक एग्जीक्यूट, लाइक दे कैन यूज pods, कंटेनर काइंड ऑफ थिंग्स फॉर द immediate response in backend. Circuit breaker, a design pattern that stops calls to a failing service to prevent system overload and failure. Circuit breaker क्या होता है? सपोज कि आपने डीबी सर्वर को क्वेरी भेजी, और डीबी सर्वर पे ऑलरेडी 100 क्वेरीज हैं, तो उस टाइम वो उसे ब्लॉक कर देगा जब तक कि वो अंडर द लिमिट नहीं आ जाए। तो इससे क्या होगा, बार बार क्वेरी हिट नहीं करेगी तो सर्वर फिर ऑप्टिमाइज रहेगा। की टेक अवे 502 टाइम आउट एरर, 503 ये ओवरलोड एरर होता है। डीबी मोस्टली इसमें डीबी रूट कोड पाया जाता है। फाइनल आर्किटेक्चर थिंकिंग क्या, ऑलवेज थिंक यूजर प्रॉक्सी ऐप डीबी। लाइक पहले यूजर से प्रॉक्सी पे जाएगा, प्रॉक्सी से ऐप पे जाएगा, फिर डीबी पे जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द टुडे वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय।